Yes, good morning to all. So, in the previous lecture, we have completed the Chomsky normal form. So, a context-free grammar is called into Chomsky normal form if all its productions are in the form of A to is small a, that is to terminal, or A to BC, that is both are variable. Means either it should be a single length of terminal or variable of exactly two lengths. Then we can say then these productions are in Chomsky normal form. तो हम लोगों ने चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में ये न्यूमेरिकल कर लिया था या नहीं? आपके सेक्शन में ये न्यूमेरिकल हो गया था? और सेक्शन इज सेक्शन बी ना? तो आप आपके सेक्शन में ये हो गया था बेटा? दीक्षा, नंदिनी, रिया, न्यूमेरिकल ये हो गया था? Okay, good. So, just this is the way that we can convert any grammar in the form of Chomsky normal form. So, this is the basics about the Chomsky normal form. After that, these are the basic three steps that we have to follow to solve or to convert a context-free grammar into the normalized into the Chomsky normal form. And now, जस्ट दिस इज वन मोर थिंग, ये मैंने आपको बताया था, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। और एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था। यस दीक्षा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आई विल डिस्कस जस्ट आफ्टर जस्ट 5 or 6 minutes. So simple. Just if I want to write the complete algorithm of context or Chomsky normal form, or algorithm to convert the context-free grammar into Chomsky normal form, then we can write in general form, right? So, for example, basically there are three steps as we already discussed. So these three steps will be used here, but it is written in detailed form. So how can we write it this one? So just you can start with step 2. The step 2 is what? Just see here, remove null production. So if there is any null, then we will eliminate null. And the third step is remove unit production. If any unit production is there, then we will eliminate unit production from the context free grammar. Now, the step 4 and 5 is just see here. In this case, if production is in the form of this one, means a variable producing more than two variables, where the length of variable is more than 2. In this case, we have to convert it, we have to restrict the length of this variable on right hand side by 2 length only, right? So this is the same thing that I already discussed with you. And fifth step is thus, if the right hand side of any product is in the form of A to B, AB, this is the what? This is the terminal along with the variable, right? So in this situation, we have to terminate, we have to eliminate the terminal. So simply, in this case, this A can be replaced by any variable, right? So here you are using X, this A to AB is replaced by A to XB, where X is what? X is A. So now this terminator, that is A, is replaced by X, where X is A. So this is again a context free Chomsky normal form. This is again in Chomsky normal form. So the same production rule is converted into Chomsky normal form by deriving these two statements. So ultimately, all the steps are same as the previous one that we have already solved. But there is step 1. This is important point here. Now I want to discuss with you. Step 1 is what? Just see here. If the start symbol S, this is important point, occurs on the right hand side, then create a new state symbol S dash, and the new production will be S dash to S. This step 1 will be applicable only when we have any production in that form, that is suppose A, B, suppose this is A, B, and suppose A to S, B, or uh, suppose AA, right?
So in this situation, this S is the start symbol, but in the production, S is also appear on the right hand side, right? So that in this situation or in this case only, we will assume a new symbol, that is S dash, and just start symbol will be attached with this S. So this is only the rule for the starts that can be applicable only when start symbol S occur on right hand side. Okay, otherwise no need to add this particular step. So the all the steps are same as we have already solved the question, but except this step one. So step one can be applicable only when the S start symbol occurs on the राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, अगर ऐसा हो तो, लेकिन चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये चीज आ सकती है। अदरवाइज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें एस राइट हैंड साइड में आया हो, ठीक है ना। बट आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है और किसी नेट पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। सो इट शुड बी नोन टू ऑल of us. That's why I'm telling you. So now I'm just switching to the question that I already gave you for the homework. So have you done this question? In this question, there is a null production, that is B to null, and there is unit production also, that is A to B and A to S. So the step one is what? Elimination of null and unit production. So first, just try to eliminate the null production, then try to eliminate the unit production. After that, we will try to convert the context-free grammar into Chomsky normal form. So how many of you have done this question? Whether it is wrong or right, this is the another part. बट पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? दीक्षा, गोपाल, सौम्या, किस किसने सॉल्व किया है? यस और नो लिखिए। अगर किया है तो आप यस लिखें, नहीं किया है तो नो लिखें। उन्नति, ओके गुड गुड। जैन, मेघा, ओके गुड। रिया, गुड। ऐश्वर्या, ओके। दीक्षा, गुड। और किसने किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सौम्या, ओके। 9 और किसने किया? रोशनी, ओके गुड। और किसी ने नहीं किया? बॉयज में किसने किया है? बॉयज में किसने किया है इसको? मैं अब जिसका नाम ले रहा हूं आप अपना स्टेटस बताएंगे, ठीक है? सनल, रोल नंबर 44, सरल मिश्रा, हैव यू डन दिस क्वेश्चन बेटा? 44, रोल नंबर 44, रोल नंबर 48, शशांक पांडे। सनल, आर यू देयर? सनल, आर यू देयर? आप, अगर मैं आपको कॉल करता हूं तो आपका तुरंत रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना? अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपने बस क्लास को ज्वाइन कर दिया और आप सुन भी नहीं रहे हैं जब आपको नाम पता नहीं लग पा रहा है। सनल, आर यू नॉट देयर? ओके, मैं रिमूव करता हूं आपको फिर क्लास से। यस, शशांक पांडे, रोल नंबर 48। शशांक, आर यू देयर? शशांक, शशांक इज नॉट देयर, ओके। प्रभात, 35, हैव यू डन दिस? पहले तो मुझे ये बताओ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ आप में से कितने लोग हैं इस समय, है ना? आपने ज्वाइन किया है लेकिन आप सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, या आप सुन रहे हैं लेक्चर या नहीं, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। प्रभात, आर यू देयर? रोल नंबर 35। केवल आप ये बताओ हो या नहीं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। जब आप हैं ही नहीं तो क्वेश्चन डिस्कस कैसे होगा, है ना? सो प्रभात, आप नहीं है? प्रियम श्रीवास्तव,
Roll number 37. Are you there? प्रियम, रोल नंबर 37। देखिए, अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप दोबारा से करके देखिएगा, है ना। डाउट होगा, हम आपको डाउट सारा क्लियर कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप साथ के साथ में अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आगे नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब अगर आपने ज्वाइन किया है क्लास तो आप इंटरएक्टिव रहिए, है ना। ऐसा नहीं है अगर हम आपसे कोई चीज पूछ रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। प्रियम आरबी आप भी नहीं है इसका मतलब। रोशनी तो सुमित कुमार, रोल नंबर 53। सुमित आप हैं बेटा? सुमित कुमार, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? रोशनी, मेरी वॉइस आ रही है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज यतेंद्र। यतेंद्र राजपूत। यतेंद्र राजपूत, चलिए, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सुमित, दीक्षा, तुम्हारा क्या रहा, हो गया है नहीं? दीक्षा, have you done this question or any have you any doubt? नंदिनी, आप बता सकते हैं, कोई भी जिसने भी किया है, आप मैसेज लिख के बता सकते हो। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं आया बेटा? नंदिनी, कहीं पे कोई डाउट आया हो? मोहित, कोई भी डाउट? सभी का हो गया? सो इन दिस क्वेश्चन, जिसको भी डाउट हो तो आप पूछिए किस स्टेप में डाउट है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। ओके, थैंक यू नंदिनी। So in this question there is B2 null, is a production. This is a null production, that B2 null. So just step 1 we will try to eliminate the null production. Clear? तो हम कैसे निकालते थे? B हमारा क्या हुआ? पहला W1 में क्या आएगा? B is what? B is the variable that is producing null, right? अब हम दूसरे में क्या देखेंगे? जो B को प्रोड्यूस कर रहा हो। तो B को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? A, ठीक है। अब आप देखिए, और बी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? और कोई बी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड दैट द एनी वेरिएबल दैट इज प्रोड्यूसिंग ए और बी। बी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ए, तो ए और बी का सेट आ गया। ए और बी को देखो कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ए और बी को फिर और कोई प्रोड्यूस नहीं करता, ए और बी आपका नलेबल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर एलिमिनेटिंग द नल प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर, यू कैन फाइंड हियर, जस्ट स्टार्ट विद दिस one more important thing that I want to discuss with you, that as I already told you, the first step in today's algorithm, that if S is appear on the right hand side of any production, then we should add one dummy state as the initial state, right? So how can we find this? So in this situation, you can see here, this S is appear on the right hand side in this way, and here it is also appear on the right hand side. So simply we will use a simple symbol, that is S dash or S0, whatever you like. So just you can use, just in this question, I am using S0. So S0 to S is added because S is appear on the right hand side of any production. So this is the simply step 1. So just the number of productions will be S0 to S. This is added by you, and all the productions are same as the previous one. Is it clear? So first step should be clear to all. If you have any problem in first step, please let me know. Clear हो गया बेटा? अब हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसको खत्म करने जा रहे हैं। नाउ टुडे वी विल ट्राई टू स्टार्ट another normal form, that is the Greivak normal form. Okay, so now just see here. So first step is clear,
that is S is appear on the right hand side of the production. That's why I am just adding one transition as, or one production as S0 to S. So final productions are this one. अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, केवल आपका यहाँ क्या आ गया, एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ गया, राइट, और बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। तो जो भी एस का प्रोडक्शन आएगा जस्ट वी विल रिप्लेस हियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ द सेकंड स्टेप विल बी just elimination of null production. So here this is the null production, B2 null. So just a minute. Okay, A2 null, एक मिनट, एक कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। A2 null नहीं है, ये वाला नहीं है, B null है, A तो है ही नहीं null इसमें कहीं पे भी, हाँ B null है केवल, ठीक है, इसी के हिसाब से करना है हम लोगों को। तो B इसमें null है। तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि हम इसको B को null हटाएंगे यहाँ से। तो देखो B को null अगर आप हटाएंगे तो इस तरह की सिचुएशन आपकी आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। आप देख लीजिए चेक करके, अगर B2 null आप यहाँ से हटाते हैं तो आपको ये सिचुएशन आएगी। और अगर इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ हो गया कि इसमें A2 null और रखेंगे तब ये वाला प्रोडक्शन आएगा। अदरवाइज अगर हम इसके हिसाब से बात करेंगे तो A में हमारा ये भी टर्मिनल, ये वाला जो आएगा B, और यहाँ पर S है, तो ये दोनों क्या आएंगे, यूनिट प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो आप लोगों को मैंने यही क्वेश्चन दिया था करने के लिए, तो आप इसे मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। यहाँ तक ये वाला आंसर सही आ रहा है आप सभी का, नल को हटाने के बाद आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑफ B2 नल, आपका आंसर सबका सही है। आप एक बार चेक कर सकते हैं सभी लोग, सही है सभी का। नाउ आप यहाँ से इस ए वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि इसको हमने नोट नहीं कराया आपको, जस्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट the final production after eliminating B2 null production. We will find that S to A, S A, A B A to B and S, and ये आपके में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपके में नहीं है, and here B to B. तो ये प्रोडक्शन रूल आपके आ जाएंगे। Now we will try to find the elimination of unit production. So after this just find the unit production. तो अब आप ये देखिए आपका यूनिट प्रोडक्शन क्या आ रहा है। फाइनल आंसर चेक करिए, यूनिट प्रोडक्शन आपका क्या आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं। यूनिट प्रोडक्शन क्या है इसको देखिए फटाफट। यूनिट प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या कोशिश करेंगे, जस्ट ए मिनट। यूनिट प्रोडक्शन के बाद सपोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूं मैं वापस से, यस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यूनिट प्रोडक्शन हटने के बाद आपके पास जो भी हमारा प्रोडक्शन रूल आ गया, एक कोई भी पूरा प्रोडक्शन रूल लिख लीजिए। जैसे यहाँ से हटाने के बाद पूरा जो प्रोडक्शन रूल है इसको पूरा एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। कोई प्रोडक्शन इसमें चेंज आएगा तो हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे दोबारा से। और एक्चुअली इसमें केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें मेरे से मिस हुआ है, यहाँ पर A2 नल और था, ठीक है ना, इसलिए ये प्रोडक्शन रूल थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। अदरवाइज B2 नल वाला केस अगर आप यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका आंसर हमारा आंसर मैच करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज इफ वी रिसीव द प्रोडक्शन रूल्स in this way, that S0 to AS, AS to AS, A to AS, A. So it means that these are the variables of length 3, right? So in this situation we have to restrict the length of the variable, means just we have to convert these variable in the length of 2. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, just you can see here, मैं आपको करके दिखाता हूं पूरा। इन दिस केस इस एस ए, मैंने कहा था हमेशा राइट से मानिए, इस एस और ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 मान सकते हैं, राइट। इस एस और ए को x1 मान लिया, एस और ए को x1 मान लिया, तो हमारा S0 क्या हो गया, S0 क्या हो जाएगा, इट बिकम्स AX1, क्लियर, एंड S2 AX1, दिस इज द सेम, एंड A2 AX1, right, where x1 is what, where x1 is SA. So you can see here that all the productions are on the right hand side, the variable length is 2, so it is permissible in case of the
Chomsky normal form, and here x1 is SA. Again, it is also in the Chomsky normal form. So you can find all the productions of the grammar in Chomsky normal form. Simple. तो एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हम लोगों ने एस से लेके हमारे पास सारे प्रोडक्शन थे, राइट? तो लेकिन एस हमारा राइट हैंड साइड में अपीयर हो रहा था, दैट्स व्हाई वी यूज्ड S0 टू एस प्रोडक्शन। क्लियर? तो एक सिंपल सी काम और है, हम पहले सारा सॉल्व कर दें, सारा, इसके अलावा इसको छोड़ के बाकी का सब सॉल्व कर दो, और लास्ट में हमें पता है कि S0 टू S लिखना होगा, बिकॉज इट इज कंपल्सरी, because S is appears on the right hand side of any production. So that's why जो S का production पूरा final निकल के आ जाए, just we can substitute the production of S in this place. So finally you can see here, or you can place the you can substitute the values or the production of S in place of S0. Just you have to copy them. बस बाकी का एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? समझ आया बेटा? कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या इसको मैं दोबारा कराऊं? एक और क्वेश्चन में कराता हूं जिससे और क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नोट करना जस्ट, ये उससे थोड़ा सा इजी है। दीक्षा बता रहा हूं बेटा, है ना? एक और इसको समझने की कोशिश करो। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और आपको डायरेक्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, इससे ये समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि जैसे अभी हम लोगों ने किया था जो क्वेश्चन, उसकी काफी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। केवल वेरिएबल इसमें एक है और उसका नाम क्या है? एस। एस इज ओनली ए वेरिएबल इन दिस ग्रामर। सो एस टू ए एस, ए बी एस बी, ए बी बी, ए बी, ऑल दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नाउ जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो इसको फटाफट करिए, उसको मैं दोबारा से एक क्वेश्चन बड़ा और कराऊंगा उसी तरीके का, जिसमें नल भी हटाना होगा आपको, यूनिट भी हटाना हो, और उसके बाद चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। इसको फटाफट करिए, और कहीं डाउट आएगा तो हम लोग अभी तुरंत डिस्कस कर लेंगे। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है दीक्षा? टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? विशाल सिंह, ओके, थैंक यू। तो 60 में से आज काफी कम बच्चे हैं, कई लोग 33 है, केवल 50% अटेंडेंस है। विशाल, आर यू देयर? विनीत, विशाल, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो केवल यस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। विनीत, तनेश, आप तीनों लोगों के लिए, और आशुतोष, चारों लोग। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर नहीं तो हम यहाँ से आउट करेंगे फिर आपको क्लास से। ओके ओके नंदिनी, तो मतलब सारे लोगों के पास नहीं है, ओके गुड। तो ये लोग जिनके नाम मैं बोलता हूँ, ये लोग तो है ना, तभी तो मेरे को दिखाई दे रहा है इन्होंने क्लास ज्वाइन की है। तो नंदिनी, जिन लोगों का मैं नाम बोल रहा हूँ इस समय पर, तो ये लोग तो अटेंड कर रहे हैं ना, तभी तो नाम आ रहा है इनका। तो तनेश, आप नहीं है। विनीत, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। विशाल, आशुतोष, आयुष चतुर्वेदी, आर यू देयर? रोल नंबर 9। चिराग, चिराग, यस। ये किस किस का हुआ कंप्लीट? अब देखिए, इसमें हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या कहा था, केवल ये जो मैंने एल्गो आज दिखाई थी आपको, उसको हम तब अप्लाई करेंगे इफ एस अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, राइट? So in this situation, you can see that S is appear on the right hand side. So simply the mean is that we have to create one more symbol, that is the start symbol, and just add one production rule। ये इसको आप लास्ट में, इसका सबसे सिंपल तरीका है, आप पहले स्टेप में लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, राइट?
और लास्ट में जब हम सारा कन्वर्ट कर चुके होंगे, देन वी कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ एस हियर। क्लियर? या जब आप यूनिट प्रोडक्शन हटा चुके होंगे सारे, तब एस की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, नथिंग एल्स। नाउ सी हियर, in this case, S to A is already in CNF, S to B is already in CNF. Clear? Now, just you have to change these variables, these 4 variables, or these 4 production rules in the Chomsky normal form. So how can we convert these production rules? So just see here, our second step is elimination of terminals. So in this case, just try to write all these production rules, that is S to ASA. So it give rise to किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? S to, आप कोई भी नाम ले सकते हो वेरिएबल का, that is CA CA, where CA is what? CA is A. यहां तक कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर? अब हमारी ये लेंथ 3 हो गई इसकी 2 की जगह, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो वी विल रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द वेरिएबल इन द नेक्स्ट स्टेप, बट हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द टर्मिनल। सो टर्मिनल ए इज एलिमिनेटेड, राइट? नेक्स्ट इज BSB. सो S is BSB गिव राइज टू, क्या हो जाएगा चेंज होके? S to CB Clear? Where CB is what? CB is B. तो ये वाला भी हो गया क्लियर। Now this is S to AA. So next production is S to AA. Give rise to S to CA. S to CA. Where CA is A, we already written. So no need to write again and again. Another one is S to BB. So S to BB give rise to S to CB and S to CB. S to CB. Where CB is what? CB is B. क्योंकि ये आपने खुद एज्यूम किया हुआ है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी तरफ से S नहीं लिखेंगे कि S को, A को भी S प्रोड्यूस कर रहा है या B को भी कर रहा है तो आप S लिख दें, ये गलत हो जाएगा। So now these production of AA and S to CB are in CNF. ये आपका CNF में कन्वर्ट हो गया क्लियरली। ये 2 पहले से थे, तो टोटल 4 प्रोडक्शन हमारे कन्वर्ट हो गए। और CA to A ये हमारा हो गया CNF में, और CB to B ये हमारा हो गया। तो नाउ द टोटल प्रोडक्शंस आर 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन हो गए। अब कौन सा रह गया? एक तो हमारा ये वाला रह गया और एक हमारा ये वाला रह गया। So step number 3, restrict the length of variable. So this can be written as S2, just see here, S2, यहां पर देखिए CA give rise to, अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? give rise to पूरी लाइन लिखने के बाद S2 CA C1, where C1 क्या हो गया? C1 is what? C1 is SCA. क्लियर? तो देखिए ये भी 2 वेरिएबल हो गए और ये भी 2 वेरिएबल हो गए, कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला जो आपका प्रोडक्शन रूल था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CNF. नाउ अनदर वन इज CBSCB, S to CBSCB. सो यू कैन राइट हियर, जस्ट सी हियर, इसको हटा देता हूं। S to CBSCB गिव राइज टू, क्या हो जाएगा? S to CBC2, where C2 is what? C2 आपने किसको मान लिया? SCB. So now you can see here clearly that this is complete. That S to CBC2 is in CNF and C2 to SCB is in again CNF. So all the productions are converted into Chomsky normal form. So now अब आप क्या करेंगे? इसको एक जगह लिख दी, क्योंकि सारे S के ही प्रोडक्शन है। तो S2 पहला क्या आया आपका? सपोज CA C1, फिर दूसरा क्या है S का? CBC2, तो ऐसे ही लिखते जाइए CBC2। और S के क्या है? S का A, और क्या है S का? A और B है, तो आप ऐसे लिखिएगा A, फिर B है, ये वाला है ना,
फिर उसके बाद एस का क्या है, सी ए और सी बी, तो सी स्लैश सी ए स्लैश सी बी, एस के सारे लिख लिए। फिर आप क्या लिखेंगे, सी ए का लिखेंगे, सी बी का लिखेंगे, C1 का लिखेंगे और C2 का लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो एस का प्रोडक्शन है इसी को आप S0 में कॉपी कर दीजिए एज इट इज, जस्ट इसी को, बिकॉज S0 इज इक्वल टू एस, राइट। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। द फाइनल पॉइंट इज, फाइनली यू शुड राइट ऑल द प्रोडक्शन एट वन प्लेस इन ए सिंगल एंड covered by a box so that we can check your answer carefully. So and one more important point कि कोई भी आपका प्रोडक्शन छूटे नहीं। अगर कोई प्रोडक्शन छूटता है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर हुआ बेटा? आप लोगों ने मेरे साथ किया होगा तो समझ में आएगा। समझ में आया? अब वेरी अच्छा, ये दूसरा इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पर किया है मैंने, यहाँ पर एन ए ले लिया है वेरिएबल ए की जगह, तो कोई भी वेरिएबल का हम रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। लेकिन सिंपल सा एक तरीका ये है कि अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे अभी मैंने किया था, तो उससे थोड़ा सा हम लोगों को कहीं ना कहीं आसानी रहती है सी ए सी बी से। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। नाउ इज इट क्लियर? क्लियर हुआ बेटा कि सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो tomorrow we will start. Yes, very good, thank you. So tomorrow we will start another point or another normal form, that is next, that is the Grebeck normal form, that is GNF. And for that time, just you can note down one more question. So for the practice point of view, S2A AB B A to A, दिस क्वेश्चन, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए और हम लोग कल इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा दोनों लिखेंगे, CA S1 और CA C1 बिल्कुल लिखेंगे बेटा। S1 है तो S1 लिखा जाएगा, CA है तो C1 लिखा जाएगा, है ना उन्नति? अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। आज हम CNF को कंप्लीट कर चुके, रिवीजन भी उसका हो गया, प्रैक्टिस भी करके देख ली। कोई भी डाउट होगा तो हम लोग एक सेशन रखेंगे, अभी तक का जो भी डाउट जिसको भी होगा तो 1 to 1 आप लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग पहले प्रैक्टिस करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है किसी भी पॉइंट पर तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको पूरा सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, जस्ट सी दिस क्वेश्चन, S2PQASB1 इस तरीके से लिखा है। जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये है, ये क्वेश्चन है, चोमस की नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करना। S2 टिल्ड साइन S स्लैश ओपन ब्रैकेट S और उसका सबसेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर S, फिर ये क्लोज, then P, then Q, and S being only the variable. So now find the equivalent Chomsky normal form of this grammar. ये आपकी बुक में दिया है, एक बार देखेंगे आप लोग, अपने आप से सॉल्व करेंगे, और नहीं आएगा तो कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। सो tomorrow we will start a new normal form, that is Grebeck normal form, and it is very lengthy actually, lengthy normal form. And for converting any production rule of context free grammar into Grebeck normal form, so before going to that point we have to understand two lemmas that are used in this normal form. So simply the lemmas are, first lemma one is this one and lemma 2 is this one. So without the lemma, we can't convert a context-free grammar into Grebeck normal form. So there are, as we know that there are two normal forms in our syllabus. So first one is completed now, that is Chomsky normal form, and another will be started tomorrow. Thank you for attending the session. Thank you. प्रैक्टिस आप करते रहिए, कोई डाउट आता है तो आप डाउट डिस्कस करिए, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू।